My lovely students, welcome to another very important session on indices and surds on Mathological. If you've not already subscribed to the channel, then make sure to subscribe to it as well as press the bell icon. Start करते हैं सेशन को. So थोड़े से फॉर्मूले कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रूट ए plus root b whole squared, that will be root a whole square plus root b whole square plus 2 times root a into root b. और root a whole square क्या होगा? That will be a plus root b whole square will be b plus 2 times root ab. Similarly, root a minus root b whole squared, that will be root a whole square plus root b whole square, which is a plus b, minus 2 root ab. Now if we add these two squares, अगर एडिशन करें इनका तो रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर प्लस रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, एडिशन करने पे ये 2 रूट ए बी वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी. एंड इफ यू सबट्रैक्ट दीज टू स्क्वायर्स, इन दैट केस रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर माइनस रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, तब रिजल्ट में हमारा a प्लस बी वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 4 टाइम्स रूट ए बी. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत? ओके, अब एग्जांपल ले लेते हैं एक दो. लेट अस से रूट 5 प्लस 3 प्लस रूट 7 कर लेते हैं पहले. रूट 5 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर. सो दिस वैल्यू विल बी रूट 5 होल स्क्वायर विच इज 5, रूट 7 होल स्क्वायर विच इज 7 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ 35. सो दिस विल बी 12 प्लस 2 रूट 35. रूट 7 minus 3 whole square. So this will be root 7 whole square which is 7, 3 whole square which is 9, minus 2 times 3 into root 7. So 2 into 3 into root 7. So this is 7 plus 9, 16 minus 6 root 7. Isn't it so? ठीक है, एक और एग्जाम्पल. 2 root 2 minus 1 whole square. So this will be 2 root 2 whole square which will be 2 square into 2, 8 plus 1 square minus 2 into 2 root 2 which is 4 root 2. So this will be 9 minus 4 root 2. Okay. Now let us say we've been given an expression that is x plus root y. x plus root y. एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका. लेटेस्ट से एग्जाम्पल है 2 plus root 5. So we know that root 5 is surd because 5 हमारा is a non-perfect square. 5 is not a perfect square. So root 5 is a surd which is also irrational. Surd है यानी कि this will be irrational number. This is also irrational number. ये बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते इसको. This is irrational number. और irrational number में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं, if we are adding 2 in an irrational number, then definitely हमारा जो sum होगा that will also be irrational number. ठीक है, so x plus root y in general will be a irrational number. Will be a irrational number if, very important, if के पार्ट बाद वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, if y is a non-perfect square. If y is a non-perfect square. Okay, for example, अगर हमने लिया 3 plus root 16, so this is not irrational because root 16 हमारा 16 तो perfect square है, तो root of 16 क्या होगा? 4 होगा. So this will be equal to 3 plus 4 which is equal to 7. So that is why this part inside the root, this should not be a perfect square. ये perfect square नहीं होना चाहिए, तभी हमारा x plus root y will be a irrational number. Is that clear? ठीक है. And if x plus root y is an irrational number,
इफ दैट इज सो, और क्वेश्चन में हमें, किसी क्वेश्चन में हमें गिवन है कि x प्लस रूट वाई इज इक्वल टू p प्लस रूट क्यू, ठीक है, एंड इफ रूट वाई इज इरेशनल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो रूट वाई है हमारा, दिस शुड बी असर्ड, दिस शुड बी इरेशनल. If this is irrational, then if this is so, x plus root y is equal to p plus root q, that implies x will be equal to p and y will be equal to q. x will be equal to p and y will be equal to q. इसके अलावा कोई भी और सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज x तो रैशनल है, ठीक है, x और p इक्वल होंगे और रूट y और रूट q इक्वल होंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. इररेशनल होना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया 3 प्लस रूट 16 इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 9. अब यहां पे इक्वेशन तो करेक्ट है, बिकॉज 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 3, 7 है सब, बिल्कुल करेक्ट है. बट प्रॉब्लम यह है क्योंकि ये पार्ट हमारा इररेशनल नहीं है, दैट इज वाई वी कैन नॉट से दैट 3 इज इक्वल टू 4 एंड 16 इज इक्वल टू 9. समझ पा रहे हो? सो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहां से हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जब इररेशनल होगा सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होगा, अगर रैशनल हुआ तब फिर इक्वल नहीं होगा, तब फिर हम डिड्यूस नहीं कर सकते, फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाई एंड क्यू शुड बी नॉन परफेक्ट स्क्वायर. वाई शुड बी नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर हमें वाई की वैल्यू गिवन है, रूट वाई की वैल्यू गिवन है. ओके, सो इफ समवेयर इट इज गिवन दैट 3 प्लस रूट 5 is equal to a plus root of b, then a is equal to 3 and b is equal to 5. This is for sure. Is that clear? Okay, now let us say we've been given expression root of a plus root of b upon root of a minus root of b, and we are adding root of a माइनस रूट ऑफ बी अपॉन रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी. अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? पॉज करो वीडियो को और अपने एंड पे सिंप्लीफाई करो इसको. क्या रिजल्ट मिलेगा इफ यू ऐड दीज टू? डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम हो जाएगा. ठीक है, और क्योंकि ये एक दूसरे को रैशनलाइज भी कर देंगे, कॉन्जुगेट है, रूट ए माइनस रूट बी और रूट ए प्लस बी एक दूसरे का. सो दैट विल बी रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी. दिस विल बी इक्वल टू ए माइनस बी. डिनोमिनेटर विल बी ए माइनस बी, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए प्लस बी. सो दिस विल बी रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर्ड प्लस रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर्ड, और दोनों का सम क्या आ जाएगा? दिस विल बी 2 टाइम्स ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी. इजंट इट सो? ठीक है, एंड इंस्टेड इफ इट इज गिवन दैट रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी अपॉन रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी माइनस रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी अपॉन रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी. देखो, अगर थोड़ा सा तुम्हें एंग्जाइटी होता है इन एक्सप्रेशंस को देख के, तो थोड़ी देर के लिए अपने एंग्जाइटी को पॉज करो. ठीक है, बस जो बेसिक हमारे प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक जो रूल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, उनको बार बार हमें प्रैक्टिस करना है, उनके बेसिस पे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, क्वेश्चंस में और कुछ तुम्हें डिफिकल्टी देख के, उसका रूट का, उसका nth पावर को देख के, इन सब चीज़ों को देख के टेंशन नहीं लेना है. बस हमें अपने रूल्स पे स्टिक करना है, अपनी बातों पे स्टिक करना है, क्वेश्चन को समझना है, और क्वेश्चन को समझोगे तो धीरे धीरे उसको सॉल्व कर पाओगे. देखो, लाइफ में हमेशा हर एक चीज़ का एक प्रिंसिपल है कि वी विल ऑलवेज गो फ्रॉम नोन टू अननोन. देर आर थिंग्स दैट वी नो, देर आर थिंग्स दैट वी डोंट, एंड द थिंग्स दैट वी नो वी ट्रस्ट देम. है कि नहीं? चाहे वो चीज़ें हो, चाहे वो इंसान हो, जिनको हम जानते हैं उनको हम ट्रस्ट करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं. सेम चीज़ हर जगह होगी लाइफ में, सेम चीज़ मैथ में भी होगी, सेम चीज़ हमारा इंडिसीजन सर्च में भी होगा. जो जो चीज़ें हमें समझ में आती जाएंगी उनके साथ हम कंफर्टेबल फील करते जाएंगे, और धीरे धीरे हमारा जो कंफर्ट जोन है वो बढ़ता जाएगा. ठीक है, तो बस कोशिश करना है हमें अपने कंफर्ट जोन में बाकी चीज़ों को लाने का. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन वी विल बी रैशनलाइजिंग, और रैशनलाइज करेंगे यानी डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. रूट ए माइनस रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, दिस विल बी ए माइनस बी. बट इस बार न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा? रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर्ड माइनस रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर्ड. सो दिस विल बी इक्वल टू, इस बार क्या कैंसिल आउट होगा हमारा? ए प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 4 टाइम्स रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी. ओके, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर बेस्ड. फर्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई रूट 7 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 3 प्लस रूट 7 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 3. ईजी है. डिनोमिनेटर हमारा आ जाएगा रूट 7 होल स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर.
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर हो जाएगा √7 प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस √7 माइनस √3 होल स्क्वायर. सो न्यूमरेटर विल बी 2 टाइम्स a प्लस b, यानी 2 टाइम्स 7 प्लस 3, and this divided by 7 minus 3. So this will be 2 into 10, 20 by 4, which is equal to 5. So simplify होके this result will be equal to 5 only. Isn't it so? ठीक है, 5 आ जाएगा रिजल्ट. नेक्स्ट 1/3 माइनस √5 माइनस 1/3 प्लस √5. अगेन 3 minus √5 into 3 plus √5 will be 3 square which is 9 minus 5, और न्यूमरेटर में आ गया 3 प्लस √5. इसके बाद एक छोटी सी चीज याद रखनी, बिकॉज ये जो बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, तो माइनस के बाद में हमारा आ रहा है 3 minus √5, तो दैट इज इन ब्रैकेट्स. साइन का ध्यान रखना, अदरवाइज लास्ट में तुम क्या करोगे, माइनस √5 कर दोगे, जबकि एक्चुअली माइनस इंटू माइनस वो प्लस होने वाला है. ठीक है, छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट है, गलती करोगे इसमें अदरवाइज. तो 3 प्लस √5 माइनस 3, और फिर ये माइनस इंटू माइनस, दिस विल बी प्लस. सो प्लस √5 डिवाइड बाई 4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी 2 √5 बाई 4 और √5/2, √5/2. ये आंसर आ जाएगा हमारा. हर एक क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करना है, अपने एंड पे पहले सॉल्व करना है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है, तभी बेस्ट होगा. ये नहीं करना है कि सत्संग की तरह चलता जा रहा है, अपना कहानी सुनते जा रहे हो, ठीक है, वरना कहानी हो जाएगा, फिर कहा नहीं जा सकता, फिर क्या होगा. तो 1/3 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस 1. तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं इनको, सो दैट हमारा जो रैशनलाइज हो जाए सारे के सारे डिनोमिनेटर्स. ओके, तो 1/3 प्लस √7 है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी, हमने मल्टीप्लाई किया 3 माइनस √7 से, 3 माइनस √7 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3 माइनस √7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 प्लस √7 इंटू 3 माइनस √7 प्लस. नेक्स्ट में आ जाएगा √7 माइनस √5 और डिनोमिनेटर में आएगा √7 प्लस √5 इंटू √7 माइनस √5 प्लस. नेक्स्ट में आ जाएगा √5 माइनस √3 एंड दिस डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3. कोई दिक्कत. और लास्टली, लास्ट वाला थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है, लास्टली हमारा आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1. अभी देख पा रहे हो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल बी 3 प्लस √7 इंटू 3 माइनस √7 विच विल बी 9 माइनस 7, यानी कि 2 आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी, क्योंकि डिफरेंस 2 का है, सब में देखोगे रूट के अंदर की वैल्यूज में डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी हमारा रिजल्ट में 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आएगा. दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2 एंड दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2. तो 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, 1/2 को कॉमन लेते हैं, अंदर बच गया 3 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √3 प्लस √3 माइनस 1. सो √7 और √7 कैंसिल आउट हो गए, √5 √3 भी कैंसिल आउट हो गया, बच गया 3 माइनस 1/2 विच इज 2/2 विच इज इक्वल टू 1. सो आंसर इन दिस केस विल बी इक्वल टू 1 ओनली. सब कुछ सिंप्लीफाई होके सिर्फ और सिर्फ 1 रह जाएगा, बाकी सब निपट जाएगा, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा. क्लियर है? ओके, सो आंसर विल बी 1 ओनली. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 1/1 प्लस √6 माइनस √7. अब यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 1 प्लस √6 प्लस √7 से. देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि 2 सर्ड्स हैं हमारे पास, देयर आर 2 सर्ड्स. ठीक है, सो प्रॉब्ली हमें एक स्टेप से ज्यादा लगेगा, एक स्टेप में काम होगा नहीं हमारा, पर पहले एक सर्ड को तो रिमूव करें, एक सर्ड को तो रिमूव करें. तो जैसे ही वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 1 प्लस √6 प्लस √7, तो यहां से 1 प्लस √6 वाला पार्ट का स्क्वायर होगा और साथ में √7 का स्क्वायर होगा. जैसे ही हम √7 का स्क्वायर करेंगे तो √7 तो हट जाएगा ना. ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने ये किया, √7 को रिमूव किया, तो 1 प्लस √6 प्लस √7. नाउ न्यूमरेटर विल बी 1 प्लस √6 प्लस √7. ये लॉजिक हमेशा समझते जाओ कि क्यों हम कोई स्टेप ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं सो दैट √7 को पहले रिमूव कर दें. ओके, सो 1 प्लस √6 होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर, √7 का होल स्क्वायर विच विल बी 7, √7 का होल स्क्वायर. ओके, सो दिस बिकम्स 1 प्लस √6 प्लस √7 और 1 प्लस √6 का होल स्क्वायर क्या होगा, दैट विल बी 1 प्लस 6 प्लस 2 √6 माइनस √7 होल स्क्वायर विच इज माइनस 7.
अब 1 प्लस 6 कैंसिल आउट हो जाएगा 7 से, 7 माइनस 7 है, कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस बिकम्स 1 प्लस रूट 6 प्लस रूट 7 बाई 2 रूट 6. अगेन अभी भी रैशनलाइज करना बाकी है, तो रूट 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. सो नाउ दिस बिकम्स रूट ऑफ 6 प्लस 6 रूट 6 इंटू रूट 6 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 6 ओनली, प्लस 6 प्लस रूट ऑफ 42 डिवाइड बाई 2 रूट 6 इंटू रूट 6, यानी कि दैट विल बी 2 रूट 6 इंटू रूट 6, 2 इंटू 6 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा. सो ये वैल्यू हमारा बन गया 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 42 डिवाइड बाई 12. रैशनलाइज हो गया हमारा डिनोमिनेटर. क्लियर? ठीक है, समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 10 टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 9 टू द पावर 1 बाई 3. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे, हर एक क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर रूट था, बट यहाँ पे क्यूब रूट है. क्यूब रूट है तो ये प्रॉब्लम है. तो प्रॉब्लम क्या है, बेसिकली अब हमें क्यूब रूट के हिसाब से सोचना पड़ेगा. कैसे इसको रैशनलाइज करेंगे? हमें अल्टीमेटली ये पावर जो है 1 बाई 3, बेसिकली ये नंबर क्या है हमारा, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 10 माइनस क्यूब रूट ऑफ 9. और ये क्यूब रूट वाला जो चक्कर है ये हमें खत्म करना है. ठीक है, सो समहाउ जब तक हम इसको क्यूब नहीं करेंगे, पावर 3 नहीं करेंगे, तब तक इसको खत्म नहीं कर पाएंगे. तब तक वी कैन नॉट खत्म इट है, खत्म नहीं कर पाएंगे, इसको एंड नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट शुड बी द बेसिस फॉर दैट? देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दिस इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ठीक है, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ओके, सिमिलरली a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दिस इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ये तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं हमारे. ओके, so in this case if we assume that cube root of 10 is equal to a and cube root of 9 that is equal to b, so ये expression हमारा क्या है, this is a minus b. So if you multiply this by a square plus b square plus ab, if you multiply this by a square plus b square plus ab, तो result क्या आ जाएगा हमारा, result will be a cube minus b cube, और a cube will be equal to 10, b cube will be equal to 9. ठीक है, so यानी कि result हमारा आ जाएगा a cube minus b cube which is equal to 10 minus 9 which is equal to 1. कब रिजल्ट बनाएगा, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग दिस एक्सप्रेशन, यानी 10 टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 9 टू द पावर 1 बाई 3 बाई ए स्क्वायर, और ए क्या है 10 टू द पावर 1 बाई 3, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 10 टू द पावर 2 बाई 3 प्लस बी स्क्वायर विच विल बी 9 टू द पावर 2 बाई 3 प्लस ए इंटू बी विच विल बी 10 इंटू 9 90 टू द पावर 1 बाई 3, 10 टू द पावर 1 बाई 3 इंटू 9 टू द पावर 1 बाई 3, तो दैट विल बी 10 इंटू 9 टू द पावर 1 बाई 3. ठीक है, बिकॉज ये तो हमें पता है ना कि p टू द पावर m इंटू q टू द पावर m is equal to p into q to the whole power m. ठीक है, तो सेम चीज है हमारा. सो दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर, दिस विल बी द आंसर. क्लियर? ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, नाउ लेट अस से देयर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसके टर्म्स हैं x1 x2 x3 x4 and so on and so forth till xn. ठीक है, ऑल दीज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है देन वी कैन से दैट x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x3 माइनस x2 इज इक्वल टू x4 माइनस x3 इज इक्वल टू x5 माइनस x4 एंड सो ऑन टिल xn माइनस xn माइनस 1. और ये सब क्या बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, दिस विल बी इक्वल टू d विच इज कॉमन डिफरेंस. ये सारी वैल्यूज कॉमन डिफरेंस होगा, इजंट इट सो? इज दैट पार्ट क्लियर? अब अगर क्वेश्चन हमसे पूछे कि 1 अपॉन रूट ऑफ x1 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x2 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x2 प्लस रूट x3 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x3 plus root x4 and so on plus 1 upon root of xn minus 1 plus root xn. ठीक है, this whole sum is given, then what will this be equal to? इसकी टोटल वैल्यू क्या होगा?
ठीक है, व्हाट विल दिस बी इक्वल टू, कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करके एक टर्म में ला सकते हैं। देखो हमें पता क्या है, गिवन क्या है, हमें गिवन है दैट x2 माइनस x1 is equal to x3 minus x2 is equal to x4 minus x3 is equal to x5 minus x4 and so on, and these all are equal to the common difference d। ठीक है, सो अगर हम रूट ऑफ x1 प्लस x2 में रूट ऑफ x1 प्लस रूट x2 में इफ यू मल्टीप्लाई रूट x2 माइनस रूट x1 देन दिस विल बिकम x2 माइनस x1, यही तो बन जाएगा है कि जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको कॉन्जुगेट से, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ये x2 माइनस x1 बन जाएगा, एंड x2 माइनस x1 क्या है, दैट इज इक्वल टू d। ये तो वैल्यू डी के बराबर है, तो बस इन सारी की सारी वैल्यूज को इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो रूट ऑफ x1 प्लस x2 को मल्टीप्लाई कर देंगे रूट ऑफ x2 माइनस x1 से, हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा जिसको हम यूज करेंगे बाद में, बट पहले समझ लेते हैं वो रिजल्ट आता कैसे। ठीक है, तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस रूट ऑफ x1, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा x2 माइनस x1। सिमिलरली रूट ऑफ x3 माइनस रूट ऑफ x2, और डिनोमिनेटर में आएगा x3 माइनस x2 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म में आ जाएगा रूट ऑफ xn माइनस रूट ऑफ xn माइनस 1, और डिनोमिनेटर में आएगा xn माइनस xn माइनस 1। अब इस सारी की सारी वैल्यूज को d से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो 1/d कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा हमारा रूट ऑफ x2 माइनस रूट ऑफ x1 प्लस रूट ऑफ x3 माइनस रूट ऑफ x2 एंड सो ऑन, और लास्ट में आएगा रूट ऑफ xn माइनस रूट ऑफ xn माइनस 1। अब x2 कैंसिल आउट हो जाएगा x2 से, ऐसे ही x3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारा लास्ट में xn बचेगा रूट ऑफ xn और रूट ऑफ x1 बचेगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/d टाइम्स रूट ऑफ xn माइनस रूट ऑफ xn माइनस 1, 1/d टाइम्स रूट ऑफ xn माइनस रूट ऑफ xn माइनस 1। इज दैट क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ तब रिजल्ट आएगा जबकि ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं हमारे x1 x2 xn ये सब AP में हो, दीज ऑल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सो समराइज करते हैं इस रिजल्ट को फटाफट से। सो रिजल्ट हमारा क्या है, इफ ऑल x1 टू xn, इफ x1 x2 x3 and so on till xn, all these terms are in an arithmetic progression, in such a case 1 by root of x1 plus 1 by root of x2 plus 1 by root of x2 plus root x3 and so on till 1 by root of xn minus 1 plus root of xn, that will be equal to 1 by d times root of xn minus root of x1, where d is common difference of AP। अब क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड, तो बातें और बेटर समझ में आएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट इज 1/2 प्लस रूट 5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7 प्लस 1/√7 प्लस √8 एंड सो ऑन टिल 1/4√3 प्लस 7, 1/4√3 प्लस 7। अब अगर अभी ये नजर नहीं आ रहा है प्रॉपरली, सो √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इज √4, तो 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस 1/√6 प्लस √7, और ये सब के सब क्या है, एपी में है 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म क्या आ रहा है हमारा 1/4√3 यानी 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 √48 प्लस 7 का स्क्वायर √49, तो टिल √49 है ये। ठीक है, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट विल बी, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, d इज इक्वल टू 1 आ रहा है हमारा, d इज इक्वल टू 1 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में आएगा 1, तो 1/1 डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, 1/d होता है, तो d हमने ये जो डिनोमिनेटर का ये जो 1 वैल्यू है दिस इज इक्वल टू d। ओके, ध्यान रखना है बिकॉज आगे के क्वेश्चंस में ये गलती हो जाएगा, कहीं पे डिनोमिनेटर 2 आएगा 3 आएगा तो फिर गलती करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कॉमन लेना है और अंदर वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ xn माइनस रूट ऑफ x1 यानी कि रूट ऑफ 49 माइनस रूट ऑफ 4। ठीक है, और कंफ्यूज हो रहा है तुम अपने एंड पे अभी भी समझ नहीं पाए हो तो एक बार कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके देख लो, सारी की सारी वैल्यूज को पूरा अच्छे से लिख लो, अच्छे से लेके कैंसिल आउट करो और फिर बाद में इस रिजल्ट पे आओ। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू √49 कितना है, √49 इज 7, तो 7 और √4 है 2, 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ओके,
ठीक है, अगर सारी की सारी वैल्यूज को लिखोगे तो क्या होगा अल्टीमेटली, हमारा √4 + √5 है तो √5 - √4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस √6 - √5 हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस √7 - √6 हो जाएगा डिवाइड बाई 1 एंड सो ऑन टिल √49 - √48 एंड दैट डिवाइडेड बाई 1। तो √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, √6 से √6, √7 से √7 एंड सो ऑन टिल √48 भी कैंसिल आउट होगा और बचेगा सिर्फ √49 - √4 और डिवाइडेड बाई 1 ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/√2 + 2 + 1/2 + √6 + 1/√6 + 2√2 + 1/2√2 + √10 till 1/7√2 + 10। So this is 1/√2 + 2 यानी कि 1/√2 + √4 प्लस 1/√4 + √6 प्लस 1/√6 + 2√2 यानी कि √8 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म हमारा क्या है, 1/7√2, 7 स्क्वायर 49 इंटू √98 प्लस 10 का स्क्वायर 100, √100। कॉमन डिफरेंस कितना है इस बार, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2, डिनोमिनेटर में आएगा 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू √(xn) यानी लास्ट टर्म विच इज √100 minus √(x1) यानी √2, so this will be 10 minus √2/2, this will be our answer, 10 minus √2/2 will be the answer। क्लियर है? ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट, तो पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है ना पिछले वाले क्वेश्चन से, लग वैसा ही रहा है बट बीच में प्लस माइनस है, अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो जनरली हम इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे कॉन्सेप्ट, इसीलिए तो समझ में आना चाहिए हमेशा, बिकॉज क्वेश्चन में जरा सा वेरिएशन आएगा तो फिर कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। 1/√16 - √14 माइनस 1/√14 - √12 प्लस 1/√12 - √10 माइनस 1/√10 - √8 प्लस 1/√8 - √6 माइनस 1/√6 माइनस 2 यानी कि √4 है, √4 है। ठीक है, इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2 का, d इज इक्वल टू 2, तो जैसे ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में तो 2 आ जाएगा, दैट पार्ट इज सॉल्व्ड, तो 1/2 कॉमन ले लिया हमने। न्यूमरेटर में क्या बचने वाला है, साइन का ध्यान रखना, बीच में माइनस साइन भी है। ठीक है, तो चाहे तो 1/2 को कॉमन ना लो, लिखा रहने दो साथ में, लिखा रहने दो साथ में, बट डिनोमिनेटर 2 आएगा, ये तो क्लियर है। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा √16 प्लस √14 डिवाइड बाई 2 माइनस √14 प्लस √12 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √12 प्लस √10 डिवाइड बाई 2 प्लस √10 माइनस 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 √10 प्लस √8 डिवाइड बाई 2 प्लस √8 प्लस √6 डिवाइड बाई 2 माइनस √6 प्लस √4 डिवाइडेड बाई 2। तो अब 1/2 को कॉमन ले लेंगे और अंदर बचेगा √16 प्लस √14, इसके बाद में माइनस साइन है तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस √14 माइनस √12 प्लस √12 प्लस √10 माइनस √10 माइनस √8 प्लस √8 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √4। सो √14 से 14, √12 से √12, √10 से √10, √8 से √8, √6 से √6 कैंसिल आउट हो गया, बच गया √16 माइनस √4/2, सो विच इज 4 माइनस 2/2 विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1, तो आंसर हमारा आ जाएगा इक्वल टू 1। ठीक है, तुम्हें इतने सारे स्टेप नहीं लिखने हैं, तुम्हें पैटर्न समझाने के लिए मैंने इतने स्टेप लिखे हैं, बट अल्टीमेटली एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो तुम इसको सॉल्व कर ही लोगे। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ओके, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन आई गेस, हाँ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव सेशन में जो भी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो समझ में आए होंगे और अगर सेशन में मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। इफ देयर इज एनी डाउट व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, एंड इफ यू लाइक्ड द सेशन, अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से करना है, साथ में टेलीग्राम चैनल भी अब जरूर से ज्वाइन कर लेना, दैट इज मैथोलॉजिकल। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और डाउट्स यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट ADI
TYA KT. That is all for this session. Bye bye and take care.